Students, in this video, I am going to start assignment problem. So, what is an assignment problem? So, assignment problem is a special class of transportation problem in which n different jobs are assigned to particular number of persons. That means origins. And finally, they complete the task. Fine. That means destinations. So persons is nothing but the origins and task is nothing but the destination. So this is a special class of transportation problem. Objective is to minimize the total cost. So a transportation problem reduces to still simpler form as the assignment if m is equals to n. Fine. So in assignment problem we are having m is equals to n. And that means number of origins is equal to number of destinations, and AI is equal to BI. That means availability and demand both are 1. Then this is assignment problem. So this is our assignment problem here. This is almost same as in transportation problem. This is objective function. CI is the cost and summation of xi is now 1 because AI is 1, BI is 1. So similarly, this is the actually the availability constraint. This is the demand constraint. Fine. So AI is 1, BI is 1, and m is equal to n. So here what is xij? Xij is 0 if job I is not assigned to j. Job I is not assigned to person j. Then the value will be 0. And if ith job is assigned to the jth person, then the value is 1. Fine. So this is given to you where. Fine. So now this is the job assignment problem. Now we have two theorems. Statement 1 is a finite minimum feasible solution always exists for an assignment problem. So for an assignment problem, a feasible solution always exists. This is the first theorem. Second says that in assignment problem, if we add or subtract a constant to every element of a row or column on the cost matrix, then the assignment that minimizes the total cost on one matrix also minimizes the total cost on the other matrix. That is optimize not disturb. यानी कि अगर हम असाइनमेंट के जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें से अगर हम हर एलिमेंट से कुछ फिक्स अमाउंट को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. Solution is still optimum. Fine. So this is the theorem. Now based on this theorem, we have a method known as Hungarian assignment method. What is the method? So method is described step by step. Let's see. First step, subtract the minimum of each row of the matrix from all the elements of the respective rows. हर रो में से एक मिनिमम सेलेक्ट करना है और उसी रो से के हर मेंबर से उसको सब्ट्रैक्ट करना है. दस क्रिएट एटलीस्ट 1 0 इन ईच रो. तो हर रो में एक एक जीरो कम से कम बन जाएगा. स्पैन और कवर द जीरोज सो क्रिएटेड बाय मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से बाय n1 लाइंस. फिर उन जीरो को कवर करना है विद द हेल्प ऑफ लाइंस. दैट लाइंस मे बी हॉरिजॉन्टल और मे बी वर्टिकल, बट कंडीशन इज दैट दे शुड बी मिनिमम. वो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करने हैं जीरो. मान लिया n1 नंबर ऑफ लाइंस का इस्तेमाल हुआ. इफ n1 इज लेस देन n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बिकॉज वी आर हैविंग ए स्क्वायर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n. देन गो टू स्टेप नंबर 2. और इफ n1 इज इक्वल टू n then stop and then go to step number 4. Fine. So let's see how to apply this. So this is an example assignment problem. 5 persons, 5 jobs. This is the cost. So now subtract the minimum from each row. Here in the first row minimum is 1. Subtract this from 5. So we get 4. Subtract 1 from 3. So we get 2. Subtract 1, we get 3. Here 6, and then 1 minus 1 will be 0. Similarly in the second row
minimum is 2, so we get 0. So 2 minus 2 is 0, 3 minus 2 is 1, तो 2 को सबसे सब्ट्रैक्ट किया, so we get this. In the third line, one minimum is 1, तो 1 को से सब्ट्रैक्ट करेंगे, so we get 3, 0, 4, 1 and 3. Similarly in the fourth row, minimum is 1, so 1 को सब्ट्रैक्ट किया, so 5, 7, 0, 1, 2. Similarly in the last row, 1 is the minimum, so 1 से सब्ट्रैक्ट किया, so we get this. अब जो ये आए हैं 0, 0, 0, 0, 0, 0, इनको स्पैन करना है, कवर करना है विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस. यानी ऐसी लाइंस आप तलाश कीजिए जिस पे एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा जीरो पड़ रहे हों. फॉर एग्जाम्पल दिस लास्ट, हियर इज जीरो, हियर इज जीरो, सो यू कैन कवर अप बाय सिंगल लाइन. एक ही लाइन से कवर हो जाएंगे. तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी. बाकी सब ऐसे हैं जो सिंगल लाइन से, तो हमने एक लाइन इधर ड्रॉ की, एक इधर की, एक इधर, सारे जीरो कवर हो गए. दिस जीरो, 0, 0, 0, ऑल द जीरोज आर कवर. हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 1, 2, 3 and 4. So n1 is 4, which is less than 5. 5 is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 से कम है, that's why we have to go to step number 2. ठीक. Now step number 2. अब जो काम हमने रो वाइज किया था, वो काम हम कॉलम वाइज भी करेंगे. Subtract the minimum element from each of the remaining columns which do not contain 0 in step number 1. तो ऐसे कॉलम्स जो स्टेप नंबर 1 में 0 नहीं था, उनमें से मिनिमम सब सेलेक्ट करेंगे. और या आप दूसरे शब्दों में कहें कि आप कॉलम वाइज वही काम करेंगे जो आपने रो वाइज किया था. मिनिमम सेलेक्ट करेंगे और हर एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. फाइन. और फिर वही जीरो, उसको मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करेंगे. Again span the zeros so created by minimum number of lines, horizontal or vertical, say n2 number of lines. So n2 is if less than n, then go to step number 3. If n2 is equal to n, then go to step number 4. ठीक. Now here, so this is ये हमारा मैट्रिक्स था, हमने इसको कॉपी किया एंड देन कॉलम वाइज इसको अब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया. कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम मिनिमम इज 0, so as it is same. In the second column, minimum is again 0, so as it is same. In the third column, again same. In the fourth column, here the minimum is 1, तो 1 से सब्ट्रैक्ट, 1 को सब्ट्रैक्ट किया हर एलिमेंट से, तो 5, 3, 0, 0, 5. लास्ट वाला एज इट इज सेम, क्योंकि 0 मिनिमम रहा होगा. सो दिस इज नाउ अगेन क्रिएट, अगेन स्पैन द जीरोज. अगेन जीरो से को जो है कवर करेंगे हम विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स. तो देखेंगे कि किसी एक लाइन पे सबसे ज़्यादा जीरो पड़ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल हियर 2 and 2, सो दैट्स वाई एक ही लाइन से कवर हो गए. दे आर ऑल्सो, सो एक ही लाइन से कवर हो गए. फिर ये लाइन एक ही लाइन से कवर हो गया और ये भी. सो हाउ मेनी लाइन्स? 1, 2, 3 and 4. सो n1 इज अगेन 4, लेस देन 5, सो गो टू स्टेप नंबर 3. फाइन. नाउ दिस इज द स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3, in the cost matrix of step number 2, search out for the minimum element among the elements not covered by any lines. ऐसे एलिमेंट जो किसी लाइन से कवर ना हो रहे हो, दैट्स मीन ये वाले एलिमेंट. फॉर एग्जांपल दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी लाइंस. सिमिलरली दीज आर द एलिमेंट विच आर नॉट कवर्ड बाय एनी एलिमेंट. ये वो एलिमेंट्स हैं जो किसी लाइन से कवर नहीं हुए हैं, तो इनको अब इनमें से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल हियर एंड हियर, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट्स में से सबसे छोटा एलिमेंट है 1. अब इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इन सभी एलिमेंट्स से. फाइन. सो दिस इज, सो सब्ट्रैक्ट दिस एलिमेंट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स नॉट कवर्ड बाय एनी लाइंस एंड ऐड. सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है. कहाँ? दिस एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन एलिमेंट्स. ये जो इंटरसेक्शन एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इंटरसेक्शन एलिमेंट. दिस इज एन इंटरसेक्शन, दो लाइन का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन है. सो दिस इज द इंटरसेक्शन एलिमेंट, दिस इज द इंटरसेक्शन एलिमेंट, दिस इज द इंटरसेक्शन एलिमेंट, दिस इज द इंटरसेक्शन एलिमेंट. तो 4 इंटरसेक्शन एलिमेंट है यहाँ. यहाँ पर वो एलिमेंट ऐड भी करना है. यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे और एट द सेम टाइम यहाँ ऐड करेंगे. फाइन. सो एंड ऐड दिस एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन एलिमेंट ऑफ लाइन्स इन स्टेप 2 इफ एनी. Again span the zeros by minimum number of lines, say n3. If n3 is less than 1, n, then
रिपीट द स्टेप नंबर 3, तो इसको दोबारा से रिपीट करेंगे अगर एन 3 इज लेस देन एन, और अगर ये आ जाता है आफ्टर के नंबर ऑफ टाइम्स एन के इक्वल टू एन, देन वी विल गो टू स्टेप नंबर 4। तो इस स्टेप नंबर 3 को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक कि एन के इक्वल टू एन ना आ जाए। जब आ जाएगा तो स्टेप नंबर 4 में पहुंच जाएंगे। फाइन। सो हियर यू विल सी, हियर मिनिमम इज 1, तो इसको इसमें कुछ नहीं करना है, दिस इज एज इट इज सेम 4, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, हियर इज 0 एज इट इज सेम, 0 एज इट इज सेम। फिर यहाँ पे ये एज इट इज 0, 1 माइनस 1 विल बी 0, 5 माइनस 1 विल बी 4, 3 माइनस 1 विल बी 2 एंड 3 एज इट इज सेम रहेगा। तो जो लाइन वाले एलिमेंट है वो एज इट इज सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ एडिशन होगा, नथिंग एल्स। फिर यहाँ पर 3 प्लस 1 इज 4, 0 4 0, 3 प्लस 1 इज 4, नाउ इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया 4, यहाँ 5 प्लस 1 इज 6, ये 7 0 0 एज इट इज, यहाँ 2 प्लस 3 1 इज 3, बाकी यहाँ 3, यहाँ पे 1 माइनस 1 इज 0, 4 माइनस 1 इज 3, 5 माइनस 1 इज 4 एंड 0। तो केवल इनमें से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर ऐड किया 4 एलिमेंट्स, बाकी एज इट इज सेम। देन अगेन स्पैन बाय मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स, सो वी हैव 1 2 3 4 एंड 5। सो नाउ अगर नहीं होता है तो फिर एक बार करते, फिर हम दोबारा से करते यही प्रोसीजर, लेकिन हो गया है क्योंकि कवर नंबर ऑफ लाइन्स इज 5, सो नाउ ऑप्टिमा रीचेज। फाइन। अब हम क्या करेंगे, इन जीरो को स्टेप नंबर 4 में ऑप्टिमम असाइनमेंट करेंगे। सो टेक लास्ट मैट्रिक्स विद एन के इज इक्वल टू एन, दैट मीन्स दिस, इसको हम लेंगे। नाउ अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, स्कैन द रोज ऑफ द ऑप्टिमा असाइनमेंट मैट्रिक्स फॉर द रो विद सिंगल जीरो। ऐसी रो को तलाश करो जिसमें सिंगल जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट रो वी हैव सिंगल जीरो, पहली रो में जीरो एक ही है। फाइन। तो ऐसी रो को तलाश करना है, फिर उसको क्या करेंगे हम, तो लेट्स सी, ये है 4 1 2 4 0 0 0 4 2 3 4 0 4 0 4, then 6 7 0 0 3, then 3 0 3 4 0। तो ये हमारा असाइनमेंट था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस जीरो को बॉक्स में करेंगे। पहली रो ऐसी रो तलाश करो जिसमें सिंगल जीरो हो। सो फर्स्ट रो इज हैविंग ओनली सिंगल जीरो, सो इनक्लोज दिस इन अ स्क्वायर एंड एट द सेम टाइम इसके कॉलम में जाएं, अगर कोई जीरो है तो उसको कैंसिल कर देंगे। फाइन। तो पहले हमने ऐसी रो सेलेक्ट की जिसमें सिंगल जीरो था, उसको इनबॉक्स किया और उसके कॉलम में जो जीरो था उसको कट किया। सो दिस इज इन द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या किया, स्कैन द कॉलम्स फॉर ए कॉलम विथ सिंगल जीरो। अब ऐसा कॉलम देखो जिसमें सिंगल जीरो हो। फर्स्ट कॉलम सिंगल जीरो, कोई एक सिंगल जीरो है तो इनबॉक्स इन दिस एंड एट द सेम टाइम इसकी जो रो में होंगे जीरो उसको कैंसिल करो। रिपीट दिस स्टेप, बार बार इसको रिपीट करना है। सो नाउ अगेन फाइंड आउट द रो विथ सिंगल जीरो। सो लास्ट रो ये तो कट हो गया, सो दिस इज द सिंगल जीरो असाइन एंड एट द सेम टाइम इसके कॉलम में जो जीरो है उसको कट किया। फिर ऐसा ही कॉलम सेलेक्ट करो। सो दिस इज द कॉलम विथ सिंगल जीरो, सो सेलेक्ट एंड एट द सेम टाइम इसकी रो में जो भी जीरो है उसको कट किया एंड फाइनली वी गेट ओनली दिस वन। सो दिस इज इनबॉक्स दिस। सो दिस इज इन स्टेप नंबर 3। रिपीट द स्टेप 1 and 2 अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स हैपन्स। तो बार बार इसको करना है। कब करना है, आइदर नो जीरो इज लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल हियर कोई जीरो नहीं बचा, देन इनक्लोज जीरोज गिव द ऑप्टिमम असाइनमेंट। तो ये जो जीरोज हैं आपके 1 2 3 4 5 दे विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। फाइन, सॉल्यूशन। एंड सेकंड है एंडिंग पॉइंट, अ रो और कॉलम विद मोर देन 1 जीरो इज लेफ्ट। जब एक से ज्यादा रो बचेंगे तब। हियर चूज एनी वन ऑफ द जीरो अल्टरनेटली, इनक्लोज इन द स्क्वायर एंड कैंसिल ऑल द अदर zeros in its column and row. We will take the another example. Fine, but anyhow
दिस इज द ऑप्टिमम असाइनमेंट. ये जो हमने बनाया है, दिस इज द ऑप्टिमम असाइनमेंट. ऑप्टिमम क्या है? पर्सन एंड जॉब. फर्स्ट पर्सन फिफ्थ जॉब, फर्स्ट पर्सन फिफ्थ जॉब, फिफ्थ पोजीशन पे बॉक्स है. सेकंड पर्सन फर्स्ट जॉब, सेकंड पर्सन फर्स्ट जॉब. थर्ड पर्सन फोर्थ जॉब, फोर्थ पर्सन थर्ड जॉब एंड फिफ्थ पर्सन सेकंड जॉब. तो जहां जहां बॉक्सेस हैं वो हमने लिख दिया. नाउ द कॉस्ट, कॉस्ट इज फ्रॉम द इनिशियल. यहां पर इनिशियल में क्या था? ज़ीरो, सॉरी इनिशियल में था हमारा ये रहा. यस, दिस इज द इनिशियल. so let us see, here is 0 0, but at the initial here is 1, so write down 1. then here 0, here was 2, so 1 plus 2. तो जो ओरिजिनल में जो जो एंट्री थी उसको हमने यहाँ पे लिखा. 1 plus 2, यहाँ पर क्या था? 2, so 2. यहाँ पर क्या था? 1, so 1. यहाँ पर 2. So 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 2, total is 8. So this is the cost. This is the cost of assignment. Fine. Note point. ये मिनिमम की प्रॉब्लम थी. मैक्सिमम की प्रॉब्लम कैसे करेंगे? If the problem is of maximization, then change the problem into minimization by subtract all the elements from the largest element of the matrix and then follow the method. Or alternately, just multiply each matrix element by -1 and follow the method. So there are two ways to handle the maximization problem. One, just subtract the each element by the largest element. पूरे मैट्रिक्स का लार्जेस्ट एलिमेंट में से सबको सब्ट्रैक्ट कर दो. सेकेंड ऑप्शन इज जस्ट मल्टीप्लाई बाय -1 एंड देन फॉलो दिस मेथड जो हमने डिस्कस किया. दिस इज द हाउ टू हैंडल द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. फाइन. एक और एग्जाम्पल है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ. फाइन. थैंक यू.